بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ کا عقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایک یہودی عالم جو مکہ میں آیا ہوا تھا، جب اسے پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور بے چین ہو کر ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ مکہ والے جو پہلے ہی حضرت عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کے جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے وہ انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشن گوئی کر کے جا رہا ہے، لوگوں کا جناب عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکہ کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا، میں اسی کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیم پر ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ 4تھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام سواد بن قارب تھا، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب دیکھ چکے تھے ایک یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورا مکہ یا کم از کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد ابن قارب تو مکہ میں زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا پیشن گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے اور کہا کہ پھر ایسا کریں کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے ساتھ لے کر جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیار جھکتے ہیں اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لایا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیں کہ میں ابھی اس بچے پر ایمان لا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سواد ابن قارب ہے۔ یہ واقعہ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के चौथे दिन का है। 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते का अकीका करते हैं और सारे मक्का वालों को दावत अकीका में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया कि बच्चे का नाम क्या रखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना को पहले ही पैगंबर खुदा के नाम की बशारत हो चुकी थी। चुनाचा उन्होंने फरमाया कि मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब की सरजमीन पर यह नाम नया था, आज तक किसी ने ये नाम नहीं रखा था। उसके लफ्जी माने हैं वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि ये आपने कैसा नाम रखा है जो तारीख में पहले किसी ने नहीं रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही है कि सारी दुनिया उस बच्चे की तारीफ करे, इसलिए मैंने उसका ये नाम रखा है। यहूदी, काहिन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हुजूर अकरम की पैदाइश की रात पेशन आने वाले वाक़यात देख चुके थे, इसलिए वो इस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए थे और सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और उसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए तबाही ही तबाही है। उन हालात के पेश नज़र रब्बे करीम की मसलिहत ये थी कि पैगंबर इस्लाम कुछ अरसे के लिए मक्का की ज़मीन से गैब में चले जाएं, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आएं तो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले जाएं। पैगंबर इस्लाम बड़ी तेज़ी से नशोनुमा पा रहे हैं। रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे, 15 माह की उम्र में आप तीरंदाजी करने लगे थे और 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम नौजवानों से कुश्ती लड़ते थे और उन्हें शिकस्त दिया करते थे। इतनी तेजी से होने वाली नशोनुमा एजाज नबूवत थी और दूसरी तरफ ये मसलिहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके जहन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा। चुनाचा अगर पैगंबर इस्लाम पर इसकी निगाह पड़ी तो शायद वो नज़रअंदाज कर जाए। उसके साथ साथ ऐसे वाक़यात भी पेश आ रहे हैं कि ना जनाब आमिना को कोई काम करना पड़ता है, ना जनाब हलीमा को कोई काम करना पड़ता है और ना दादा अब्दुल मुत्तलिब को कोई काम करना पड़ता है। जब जनाब आमिना की निगरानी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे तो वो हैरान हैं, और जब बीबी हलीमा की निगरानी में रहे तो वो हैरान हैं कि जब कभी हमारा दिल चाहता है कि हम उनको नहलाएं और उनके सर में तेल डालें तो हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले नहलाकर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो उनकी आंखों में मैल वगैरह होता है और जब ये सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताज़ा और हशाश बशाश होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदलें, पता चला कि पहले ही उनको कोई नया लिबास पहना कर चला गया है। हत्ता के खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहाँ पर पैगंबर इस्लाम की वजह से रिस्क पहुँचा। घर वालों के खाने से पैगंबर इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया, तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वो हैरान हैं कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता कि जब बचपने की वो उम्र थी कि जब आम तौर पर कुदरती ज़रूरियात की वजह से बच्चे का लिबास ख़राब हो जाता है, जनाब आमिना और जनाब हलीमा कहती हैं वो जो ज़रूरी हाजतें हैं उनके निशान भी हमने कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। अर्ज़ ये कि सारे के सारे काम परवरदिगार आलम की मसलिहत से तय पा रहे हैं, मगर दुश्मनों का ग्रोह मुसलसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिली हैं, उनमें ये भी था
کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے؟ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پر حملہ ہوا، جناب ہاشم پر حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پر حملہ ہوا، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایات میں ہے کہ جب جناب عبداللہ کے جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا، اور اس کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے آخر ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں، اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے، چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں جناب عبداللہ پر حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا، یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے، وہاں آ کر تحقیق کی تو اطمینان کا سانس لیا جب پتہ چلا کہ وہ لاولد تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینے گئے۔ مدینے پہنچ کر مدینے سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ خون سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا، اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے، یہ تو پتہ چلا لیا کہ عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ معلوم کرنا بھول گئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ حاملہ ہو اور کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ عوام کو اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسا پیدا ہو گیا؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ قتل کیا کہ یہی رسول کے والد ہیں
और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। ये भी हमने पता चला लिया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? अब परेशान हैं क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और ये अजीब व गरीब वाक़यात पेश आएंगे। अब हैरान हैं कि अब्दुल्ला के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बरअक्स है। फौरन एक ग्रोह बनाया गया ताकि वो मक्का में जाकर तहकीक करें। जब ये लोग मक्का पहुँचे तो इस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था, और पैगंबर इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हो गया हो, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते क्योंकि मक्का में 2 मरतबा यहूदी साजिश कर गए थे। जनाब अब्दुल्ला पर भी हमला इन्होंने करवाया था, और उनके बाद जनाब आमिना के बारे में भी तहकीक उन लोगों ने करवाई थी। चुनाचा अब मक्का वाले होशियार हो गए हैं, खास तौर पर खानदान बनो हाशिम वाले उन लोगों पर नजर रखे हुए थे। यहूदियों का कोई ग्रोह किसी से सवाल नहीं कर सकता, अब पूछ किसी से नहीं सकते। एक एक घर पर ताक लगाए बैठे हैं, खानाए काबा में देखते हैं, बाप की गोदों में देखते हैं, मगर कोई 2 महीने का बच्चा नजर नहीं आ रहा। नाकाम वापस लौट गए, अब आ रहे हैं जा रहे हैं और मुसलसल तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी तहकीकात नाकाम हो रही हैं क्योंकि पैगंबर इस्लाम तो इस वक्त मक्का से बाहर हैं। अलबत्ता जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हो गई और पैगंबर इस्लाम मक्का मुस्तकिल तौर पर आ गए तो उस ज़माने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। मुअर्रिखीन इस्लाम में इस मसले में इख्लाफ है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत के बाद इब्तिदाई दिनों में पैगंबर इस्लाम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत ये है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक सूबिया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। ये सूबिया पैगंबर इस्लाम के एक चचा अबू लहब की कनीज थी। रिवायत में है कि अबू लहब ने फ़कत इस खुशी में कि उस कनीज ने उसके भतीजे को दूध पिलाया था, आज़ाद कर दिया था। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई उस वक्त अबू लहब आपकी मुखालिफत में नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में पैगंबर इस्लाम की मुखालिफत करने का एक सबब उसकी बीवी भी थी। ख़ानदान बनु उमैया में शादी के बाद अबू लहब अपने ख़ानदान को छोड़कर अपने ससुराल के साथ मिल गया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम को हलीमा सादिया के सुपुर्द करने से पहले चंद दिन दूध हजरत आमिना ने ही पिलाया था। उसके बाद पैगंबर को बीवी हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने शरई हुक्म के मुताबिक 2 साल तक पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। रिवायात में है कि जिस वक्त हलीमा सादिया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया उस वक्त वो दीन इब्राहिमी पर थी, और उस वक्त दीन इब्राहिमी ही बरहक दीन था। चुनाचा उस पर ईमान रखने वाला, अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था। यानी कि कोई ये एतराज़ नहीं कर सकता कि किसी मुशरिक या काफिर ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया था। पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले का 1 साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थी, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्का वाले भी परेशान थे, मक्का के बाहर वाले भी परेशान थे। मगर जिस साल पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई मक्का इंतहाई खुशहाल हो गया, लेकिन मक्का के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहाँ से लोग रोजगार के लिए मक्का आ रहे थे। जहाँ एक तरफ मक्का में कहत नहीं है और गल्ला कसरत के साथ है, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि उसी जमाने में मक्का में एक वबाई बीमारी फैल गई थी। खास तौर पर बच्चे उसकी लपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे।
एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में ये बीमारी फैलती जा रही थी। तो ये दो सबब पैगंबर अकरम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। पैगंबर अकरम को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबत व परेशानी से दूर किया था, मगर वालिदैन तो परेशान होंगे। और दूसरी बात कि मक्का के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, उनकी मदद करना भी जरूरी है। और तीसरी बात, जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि यहूदी जासूस ये देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुआ है कि नहीं, मुसलसल मक्का आ रहे हैं। उन हालात में अब जितना जल्द पैगंबर इस्लाम को मक्का से मुंतकिल किया जाए, उतना ही ज़ाहिरी एतबार से रसूल की हिफाजत के लिए बेहतर है। अगरचा अल्लाह ताला जाहिर रखकर भी पैगंबर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन ग़ीबत में ले जाने में भी अल्लाह की मसलिहत है। 7वें दिन पैगंबर इस्लाम का हकीका होता है। हकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमिना अपने बिस्तर पर लेटी होती हैं कि यकायक एक बशारत होती है। जनाब आमिना जो पैगंबर इस्लाम की वालिदा हैं और दीन इब्राहिमी पर हैं, इतना तो समझ सकते हैं कि बशारत क्या है। ये जो आवाज़ आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? बहरहाल उन्हें ये बशारत होती है कि अपने बच्चे को उस औरत के हवाले करना जिसका नाम हलीमा सादिया है। हकीकत के अगले दिन यानी विलादत के 8वें दिन पैगंबर इस्लाम को मक्का से मुंतकिल करना है। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्का से बाहर कहत पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का ये तरीका था कि साल में 2 दफ़ा मौसम बहार में यानी सर्दी के फौरन बाद और मौसम क़ज़ा में यानी गर्मी के फौरन बाद जो आसपास के देहात थे, वहाँ की औरतें मक्का में आती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दीजिए, हम उसको परवरिश करेंगी, उसे दूध पिलाएंगी। तो मुसलसल कहत के ज़माने में तो और ज़्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्का के बाजारों में, गलियों में और जहाँ ये औरतें जमा होती हैं, वहाँ जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे उस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। उधर गुलाम गया, उधर जनाब आमिना की कनीज आती हैं और कहती हैं कि हमारी मलिका आमिना ने ये दरख्वास्त की है कि आप जिसका भी इंतखाब करें, एक दफ़ा उसे मेरे पास ज़रूर भेज दीजिएगा। मक्का से कुछ फासले पर कबीला बनी साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था, उसी निस्बत से नाम हो गया हलीमा सादिया। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि हम लोग अपने दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफ़ा मक्का जाते थे और जाने के बाद वहाँ के साहिबान दौलत और जो सरदार हैं, उनके बच्चों को लेकर आते थे। उस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में कहत शदीद से शदीद होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिब दौलत का, किसी सरदार का बेटा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनाचा हमारा काफिला निकला। सारा कबीला एक साथ चल रहा है। पूरे कबीले का एक ही पेशा है, मर्द और औरतें सब साथ जा रहे हैं। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं उस पूरे सफर में बेहद परेशान रही, इसीलिए कि मैं जिस सवारी पर सवार थी वो एक गधी थी और बीमार थी, उससे चला नहीं जा रहा था, बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। अब मैं भी शर्मिंदा कि कबीले वाले मेरी वजह से परेशान हैं। कबीले वालों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि किसी को छोड़कर कबीला आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरे सुस्त जानवर की वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। अब अगर कोई जबान से नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सबको जल्दी है कि मक्का जाएं और पैसे लेकर आएं ताकि उनकी जिंदगी में राहत व आसानी आए। दूसरा मेरा मसला ये था कि कहत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं। अपने ग़िज़ा के लिए फ़कत एक ऊँटनी थी, उसका दूध निकाल कर हम लोग पिया करते थे। मगर आज के दिन ऊँटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज़्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध जो हम कभी उसके थनों से निकालते थे वो हम सब इस्तेमाल करते थे और सब भूखे रह जाते थे। हालात ऐसे हैं कि कोई किसी के कुछ मांग भी नहीं सकता। और तीसरी परेशानी मेरे साथ ये हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था उसको पिलाने के लिए भी मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए कि मेरे दाएं सीने में दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था। ग़िज़ा भी कम मिल रही है। वैसे भी जनाब हलीमा को उस वक्त बीमारी है,
अब इंतहाई परेशान कि हम चल तो रहे हैं मगर उन सारी मुसीबतों के साथ चल रहे हैं, नतीजा क्या होगा। खैर, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्का में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊँटनी की भी फिक्र है, और मुझे खुद अपनी भी फिक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले भी लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहली तहकीक यही करेगा कि उसके बच्चे को पेट भरकर ग़िज़ा मिलेगी या नहीं। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही हूँ। मैं इंतहाई परेशान थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ ना जा सकी। पूरा कबीला मक्का में है और मुझे इत्तला मिली कि मक्का के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिब हैसियत आदमी हैं, उन सब के बच्चे तो दूसरी औरतों ने ले लिए और मुझे कहीं से कोई बच्चा ना मिल सका। अब मैं इंतहाई परेशान कि क्या करूं। एकाएक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाजें आई जो ये कहते हुए मक्का की गलियों और बाजारों में जा रहे थे कि अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वो हजरत अब्दुल मुतल्लिब के पास आए और उनके यतीम पोते को अपनी निगरानी में ले ले। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुतल्लिब का नाम बड़ा नाम है, मक्का के सरदार हैं, सारा अरब उनको जानता है। हैरान हैं कि फिर ऐसी क्या वजह है कि उस बच्चे को कोई गोद में लेने वाला नहीं, और गुलामों को आवाज लगाना पड़ रही है, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा। अपने साथियों से पूछा कि तुम अरब के सारे मालदार घरानों के बच्चे को लेकर आई हो, लेकिन सबसे अहम घराने को छोड़ दिया। तो इन्होंने जवाब दिया कि बेशक ऐलान अब्दुल मुतल्लिब के जानिब से हो रहा है, मगर जिसके लिए ऐलान हो रहा है उसका बाप नहीं है, ये यतीम है, और जब बाप नहीं तो हमें ये तवक्को नहीं कि उस बच्चे की परवरिश से हमें कोई नफ़ा पहुंचेगा। इसीलिए कि जो हक बाप अदा करता है दादा वो हक अदा नहीं कर सकता। इसीलिए हम डरते हैं कि अब्दुल मुतल्लिब का नाम सुनकर हम उस बच्चे को ले तो जाएंगे, मगर बाप न होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि ये बात मेरी समझ में भी आ गई, इसीलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहां पर नहीं गई। मैंने कोशिश की कि अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई, और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, ना सिर्फ ये कि वो जा चुके हैं, किसी गरीब घर का बच्चा भी अब नहीं मिल रहा है। चुनाचा मैं परेशान होकर हजरत अब्दुल मुतल्लिब के पास पहुंची कि चलो अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना मिले तो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि जैसा बच्चा मिले तो उसी को ले जाऊं। मैं हजरत अब्दुल मुतल्लिब के पास पहुंची और सलाम किया। सलाम का जवाब देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो। मैंने वजह बताई कि ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। नाम सुनकर हजरत अब्दुल मुतल्लिब मुस्कुराए और कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है, नाम में हलम भी है और सादत भी है। ये दो ऐसी खूबियां हैं कि ये किसी को भी मिल जाएं, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आई इसीलिए हूँ। कहा कि नहीं, तुम्हें पहले बहू के पास जाना होगा, आमिना से मुलाकात करो, अगर वो भी राजी हो जाएं तो फिर ये मामला तय पाता है। अब खरीद के साथ हलीमा सादिया जनाब आमिना के पास तशरीफ ले आईं। उनके कमरे में जाते ही हैरान हो गई। जिस वक्त कमरे में दाखिल हुई, दोपहर का वक्त है और अरब का सूरज जहाँ पे बादल नाम को नहीं होता, हर वक्त रोशनी ही रोशनी। लेकिन कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सूरज की रोशनी से हटकर किसी रोशनी से कमरा मुनव्वर हो रहा है। हैरान होकर सवाल किया कि आप अपने कमरे में दिन के वक्त भी चिराग रोशन करके रखती हैं? जनाब आमिना मुस्कुरा कर कहती हैं कि नहीं, ये चिराग की रोशनी नहीं है, ये मेरे बेटे के चेहरे की रोशनी है। ये जिस वक्त से उस कमरे में आया है, हर वक्त ये कमरा रोशन रहता है। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि आई तो थी बड़े बुझे दिल के साथ, कोई नहीं मिल रहा इसीलिए लेने आई, मगर ये जुमला सुना तो आगे बढ़कर बच्चे पे निगाह पड़ी तो खुद ब खुद एक मोहब्बत दिल में पैदा हुई। जनाब आमिना ने उनसे उनका नाम पूछा तो इन्होंने बताया कि हलीमा सादिया। जनाब आमिना ने कहा कि बेशक मुझे आपकी तलाश थी,
अब ये बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, इसकी हिफाजत करना। जनाब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को गोद में लेकर बाहर आईं। फिर उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं। पैगंबर इस्लाम के दादा ने कहा, ऐ हलीमा, उसे लेकर तो जा रही हो, मगर एक चीज हम तुम्हें बता दें कि उस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम उस बच्चे के साथ किसी अजीब व गरीब वाक़ये को देखो, कोई नई चीज तुम्हें नजर आए, तो हैरत ज़दा ना होना और किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा है, वरना दुश्मन मुसलसल पीछे लगेंगे। अभी यहाँ से तो हिफाजत से पैगंबर चले जाएंगे, मगर तुम्हारे कबीले में जाने के बाद अगर ये खबरें फैलने लगी कि उस बच्चे की क्या बरकतें हैं, तो यहूद के कान खड़े हो जाएंगे। खास वादा लिया, बल्कि कहा कि अगर तुम चाहो मैं अपने मोहल्ले में खुफिया मकान तुम्हें दे दूं। हलीमा सादिया कहती हैं कि नहीं, अपने खानदान और कबीले को छोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खैर, बात तय पा गई और जनाब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को साथ लेकर चली और अपने कबीले के पास पहुंची। काफिला फकत उनका इंतजार कर रहा है और बाकी सारी औरतों का मामला तय पा चुका है। हर एक को पहले ही बच्चे मिल चुके थे। चुनाचा जैसे ही ये पहुंची, काफिला खड़ा हुआ और हरकत करने लगा। मगर अब जो काफिला हरकत कर रहा है तो सब हैरान थे। आते वक्त हलीमा सादिया को देखकर सब परेशान थे, जाते वक्त हलीमा को देखकर सब हैरान हैं कि उनकी सवारी वो गधी जो बीमारी के आलम में थी और चला नहीं जा रहा था, अब वापसी पे इतनी तेज रफ्तारी से चल रही है कि तेज तरीन घोड़ा भी उस रफ्तार से नहीं चलता। हलीमा सादिया के लिए अपने जानवर को रोकना एक मसला हो रहा है, कहाँ वो मंजिल के चलाना मसला हो रहा था। 2 कदम चलने के जानवर रुक जाता था और कहाँ ये मंजिल के रोकना मुश्किल हो रहा है। हलीमा सादिया ये देखकर हैरान व परेशान कि ये थोड़ी सी देर में क्या मौजज़ा पेश आ गया। और फिर जब दोपहर के वक्त खाने का वक्त आया तो ये देखकर हैरान हो गई कि मेरी ऊँटनी, जिसके थनों में इतना दूध नहीं आता था कि एक आदमी पेट भर के उसे पी सके, उस वक्त इतना दूध है कि सारे कबीले में पेश किया जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। ये क्या अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की नसीहत अब समझ में आने लगी कि खबरदार, कोई भी अजीब व गरीब वाक़या पेश आए तो किसी को बताना नहीं है कि तुमने क्या देखा। बच्चे के दुश्मन ज्यादा हैं। जनाब हलीमा चल रही हैं, मगर अभी तक फैसला नहीं कर पा रही हैं कि उन वाक़यात का मतलब क्या है। फिर काफिला थोड़ी दूर गया था कि हलीमा सादिया को परवरदिगार की जानिब से बताया गया कि क्या वाक़या पेश आ रहा है। हलीमा सादिया इतनी भी हैरान ना हो कि घबरा कर उस बच्चे को हाथ से छोड़ दें। जनाब हलीमा काफिले से थोड़ा आगे हैं। करीब से हिरनों का एक गौल वहां से निकला और उनको देखकर रुक गया। ये बात हिरन की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हिरन इंसानों को देखकर भागता है। उनमें से एक हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, ऐ हलीमा सादिया, जिस बच्चे को ले जा रही हो इंतहाई बाबरकत, वो खुशकिस्मत बच्चा है, कायनात का सरदार बनने वाला है। हिफाजत के साथ ले जाना, इज्जत व एहतराम के साथ उसकी परवरिश करना। ये कहकर हिरन गायब हो गए। हलीमा सादिया हिरन की जबान से इंसानी आवाज में उस बच्चे के बारे में गुफ्तगू सुन के चौंकी और वही जवाब हिरन ने दिया जो सवाल बहुत देर से मेरे जहन में था कि ये क्या अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। थोड़ी दूर काफिला और गया। जनाब हलीमा का जानवर फिर आगे बढ़ गया कि अब करीब ही एक पहाड़ की गार से एक इंतहाई मुकद्दस और नूरानी शक्ल व सूरत का शख्स निकल के आया। बच्चे पर निगाह पड़ी, बेइख्तियार जमीन पर गिरकर सजदा शुक्र अदा किया। कहा कि ऐ हलीमा सादिया, तुम इंतहाई खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी गोद में परवरदिगार आलम की इंतहाई कीमती अमानत दी गई है। उसकी पूरी हिफाजत और एहतराम करना। ये कहकर वो शख्स वापस चला गया। जनाब हलीमा का जानवर जहाँ काफिले से आगे बढ़ता है, कोई ना कोई मौजज़ा पेश आता है। कभी जानवर ने बोला, कभी कोई बुजुर्ग आ गए, कभी दरख्त की शाखें झुकी, कभी आसमान से बादल की आवाज आई। गर्ज ये कि पूरे रास्ते में मुशाहिदा किया कि कुदरत की जितनी निशानियां हैं वो उस बच्चे के बारे में पैगाम देती जा रही हैं। जनाब हलीमा सादिया को जनाब आमिना के घर में उस बच्चे को देखकर इतनी मोहब्बत पैदा हो गई थी, तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि पैसे मिले ना मिले, बच्चे को मुझे लेकर जाना है। ये जो वाकया देखें तो मोहब्बत और बढ़ती जा रही है।
फिर जो वाकया पेश आया उसकी वजह से जनाब हलीमा सादिया उस बच्चे से और ज्यादा मोहब्बत कर रही हैं। माँ होने के नाते जनाब हलीमा सादिया के लिए एक मुश्किल मरहला था, मगर उस मरहले से बहरहाल गुजरना तो था कि जनाब हलीमा का एक सीना बिल्कुल सूखा हुआ है और दूसरे में इतना कम दूध है कि अपना बच्चा पेट भरकर ही नहीं पी सकता। अब ये बच्चा तो उजरत पर लेकर आई है, अपने बच्चे को भूखा रख के या जानवरों का दूध पिला के गुजारा करना है, मगर उस लाने वाले बच्चे को अपना दूध पिलाना है। ये परेशानी तो है माँ के जहन में कि किसी तरीके से मैं उस मंजिल से गुजरूंगी, मगर उस वक्त ये देखकर मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ गई कि जब ये बच्चा आया हलीमा सादिया का एहसान नहीं लिया। हलीमा सादिया पर एहसान किया कि जब दूध पिलाने का वक्त आया हलीमा सादिया ने ये चाहा कि अपने बाएं सीने से दूध पिलाएं, मगर बच्चे ने मुंह फेर लिया, दाएं सीने की जानिब रुख किया। कई मर्तबा कोशिश की, जब ये देखा कि बच्चा नहीं मान रहा तो एक मर्तबा बच्चे को मुखातिब किया, जिस तरह नासमझ बच्चे से आदमी गुफ्तगू करता है कि ठीक है तुम अपनी जिद पूरी कर लो, लेकिन तुम्हें यहाँ से पेट भरने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी। अलबत्ता ये देखकर हैरान हो गई कि जैसे ही उस बच्चे ने सीधे सीने को मुंह में लिया उसमें से दूध जारी हो गया और इतनी कसरत से दूध जारी हुआ कि दूसरे सीने से भी हलीमा सादिया का अपना बच्चा जो आज तक भूखा चला आ रहा था आज पेट भर के दूध पी रहा है। जनाबे हलीमा सादिया ने बच्चे को हाथ पे लिया। कितना बाबरकत बच्चा है कि आया तो अपने ग़िज़ा खुद लेकर आया और मेरे बच्चे को दूध में कमी नहीं होने दी, बल्कि उसे और भी ज्यादा दूध मुहैया कर दिया। परवरदिगार की सुन्नत है कि अपने हबीब पर किसी का एहसान नहीं होने देना है, बल्कि हबीब की वजह से दूसरों पर एहसान होना है। इस मसले पर उलमा ने ये बात भी कही है कि बेशक पैगंबर इस्लाम ने हजरत हलीमा सादिया के सीने से दूध पिया, लेकिन दरअसल इसका इंतजाम अल्लाह ताला की तरफ से था, क्योंकि उस सीने में दूध जारी हुआ जो सूखा हुआ था। चुनाचा अल्लाह ताला ने जनाब हलीमा के सीने को एक बर्तन करार दिया और पैगंबर इस्लाम को पिलाया जाने वाला दूध उसके जिस्म का जुज़वा नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जारी किया गया था। उस बात से वो एतराज़ भी ख़त्म हो गया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ से हो सकता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में फ़िरौन के महल में पहुंचे थे तो आप पर सबका दूध हराम किया गया था और उनकी वालिदा ने उन्हें दूध पिलाया था, और ये तो अंबिया के सरदार है, उन्हें क्यों गैर औरत का दूध पिलाया गया। सफ़र तमाम हुआ और जनाब हलीमा सादिया उस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची। तारीख में लिखा है कि जब बच्चे को घर में लिटाया गया तो जनाब हलीमा की सवारी वो कदी 3 मरतबा बिस्तर रसूल के गिर्द तवाफ करती है और फिर पेशानी को जमीन पर रखकर इंसानी आवाज में कहती है कि ऐ सरदार अंबिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आपकी वजह से मेरी बीमारी खत्म हो गई। हलीमा सादिया फिर चौंकी, फिर एक मौजज़ा देखा कि अब समझ में आया कि ये ज़ात इस जानवर की बीमारी ख़त्म करने का सबब बनी थी। और फिर तो ऐसे वाक़यात, ऐसे मुशाहिदात मुसलसल पेश आते रहे कि हलीमा सादिया हैरान होकर सोच रही थी कि जिस बच्चे को मैं बादिल निखास था और मजबूरन लेने गई थी वो मेरे लिए कितना बाबरकत साबित हुआ। ये बात जहन में रहे कि पैगंबर इस्लाम इस वक्त हलीमा सादिया के घर तशरीफ़ लाए थे जब उनके पूरे कबीले में कहर था। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि हम मक्का से उजरत में पैसे नहीं गल्ला लेके आए थे तो जानवरों को क्या खिला सकते थे, मगर फिर भी अपने जानवरों को अपने हाथ से तो नहीं मार सकते। रोजाना सुबह को अपने जानवरों को कबीले के चारों तरफ चरने के लिए भेज देते हैं, और अजीब बात यह है कि सारे कबीले के जानवर भूखे वापस आ रहे हैं। अगर किसी को खुराक मिल भी गई तो फकत इतनी कि मरने ना पाए, मगर भूखे रह जाते हैं, रोज बरोज कमजोर हो रहे हैं। और मेरे जानवर उन्हीं जानवरों के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो जब वापस आते हैं पेट भरे हुए आते हैं, जिस्म फरबा से फरबा हो जाता है। सारा कबीला हैरान है कि सारे जानवर एक साथ ही एक जगह पे जा रहे हैं, लेकिन सारे कबीले के जानवर कमजोर होते जा रहे हैं और हलीमा सादिया के जानवरों के साथ इतनी बरकत। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि जब ये बच्चा मेरे घर में आया उस वक्त मेरे घर में भेड़, बकरियां, ऊंट और बाकी जानवर मिलाकर कुल 22 जानवर थे, और जब 5 साल बाद ये बच्चा हमारे घर से गया
तो हमारे जानवरों की तादाद 1020 हो चुकी थी। पैगंबर इस्लाम इस घर में जितना अरसा रहे एहसान नहीं लिया, बल्कि हलीमा सादिया और उनके कबीले पर एहसान किया है। जनाब हलीमा मजीद कहती हैं कि मुझे उस बच्चे का कोई काम सरअंजाम ना देना पड़ता। जब कभी मैं इरादा करती कि आज उसके बालों में कंघी करूं और मैं ये देखती कि उसके बालों में कंघी हो चुकी है, जब इरादा करती कि उसका चेहरा धोऊं तो देखती हैं कि उसका चेहरा पहले से ही धुला होता। जब कभी ये इरादा करती कि आज उसका लिबास बदलना है तो लिबास पहले से ही बदला हुआ होता। मैं हैरान हुआ करती कि ये सारे काम कौन अंजाम देकर जाता है, कौन है, किस वक्त आता है, मुझे पता भी नहीं चलता। और मसला फकत हलीमा सादिया के घर तक नहीं, हलीमा सादिया को तो बरकत मिल रही है, मगर सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मुतासिर हो रहा है। यही वजह है कि उन 5 सालों में यहूदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि पता तो चले बच्चा गया तो गया कहाँ, मगर उन्हें जरा बराबर भी खबर ना मिल सकी, फकत इसलिए कि हलीमा सादिया का सारा कबीला पैगंबर इस्लाम पे जान छिड़कता है, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है। और सबब ये है कि जनाब हलीमा कहती हैं कि पहले दिन मैं उस बच्चे को लेकर अपने कबीले के उस दरख्त के पास गई जो सूखा हुआ था। मैं उस बच्चे को लेकर उस दरख्त के नीचे बैठी और हमने देखा कि खुद ब खुद उस दरख्त पे पत्ते आ गए, सरसब्ज वो शादाब हो गया और फल लग गए। और फकत दरख्त का मसला नहीं है, जिसके घर में उस बच्चे को लेकर जाओ वो घर खुशहाल हो जाता है। जो उस बच्चे के करीब आ जाए उसकी किस्मत ही बदल जाती है। यहाँ तक कि हमारे कबीले की जो सबसे गरीब औरत थी, इतनी गुर्बत थी कि उसका लक़ब पड़ गया उम्मुल मसाकीन, सारे मिस्किनों की माँ, यानी सबसे गरीब और फकीर औरत। सिर्फ एक मर्तबा वो मेरे घर में कुछ मांगने आई। मेरे घर से जब उसे कुछ ना मिल सका और जाने लगी तो चलते चलते उसकी निगाह उस बच्चे पर पड़ गई। 14वीं रात के चांद की तरह उसका चेहरा चमक रहा है। खुद ब खुद वो आगे बढ़ी और पैगंबर इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया। एक अरसा नहीं गुजरा था कि वो हमारे कबीले की मालदार तरीन औरतों में शुमार होने लगी। उसे उस बात का एहसास भी था कि ये तब्दीली किस वजह से आई है। चुनाचा अब वो सुबह शाम आती है और उस बच्चे के तलवे अपनी आंखों से मलती हैं और पूरा कबीला पैगंबर इस्लाम से इस्तिफादा कर रहा है और सारे कबीले की बरकतें बढ़ती जा रही हैं और सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। अजीब व गरीब बातें देख रहे हैं मगर किसी को नहीं बता रहे। पैगंबर इस्लाम दरख्त के करीब से गुजरें तो अगर सूखा हुआ दरख्त हो तो वो सरसब्ज व शादाब हो जाए। सरसब्ज व शादाब दरख्त है तो इसके सब्जे में और इजाफा हो जाए। किसी नहर के करीब से गुजरें, अगर सूखी हुई नहर है तो पानी जारी हो जाए। जिसके खेत के करीब से गुजरें उसकी फसल कई गुना बढ़ जाए। उसके साथ साथ उनके जानवरों की तादाद भी बढ़ रही है और अरब में उस वक्त जानवरों को सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती समझा जाता था, मगर जहां जानवरों की तादाद ज्यादा हो रही है वहां पर उनके दुश्मन भी ज्यादा होते जा रहे हैं। चुनाचा अरब के सहरा में भेड़िए बड़ी कसरत के साथ थे और हर कबीले का मसला ये होता था कि अपने जानवरों को भेड़िए से कैसे बचाया जाए। पैगंबर इस्लाम के आने से इंसानों को तो बरकतें मिली, मगर किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इब्तिदा में बाज़ जानवर उस कबीले के कुछ जानवर उठा कर ले गए थे, मगर बाद में जब पैगंबर इस्लाम ने दुआ की तो उन जानवरों को खुद वो बकरियां लाकर वापस करना पड़ी। चुनाचा इस कबीले के लिए सबसे इत्मीनान की बात यही थी कि पैगंबर इस्लाम के वजूद की वजह से हमारे जानवर भी महफूज हो गए। ये तमाम मनाजिर देखकर सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत कर रहा है और पैगंबर इस्लाम तो गोया अब उस कबीले के सरदार बन गए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम पैगंबर खुदा के हज़रत हलीमा सादिया के घर से वापसी और उनकी वालिदा और दादा के साथ ज़िंदगी गुजारने और वहाँ पर पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बयान करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सफ़ान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।